ओके गाइस, सो हम इसमें 2025 के यू नो 2025 के जो यूपीपीसीएस का पेपर है GS1 का, उसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which following are correctly matched. Here is the coal producing area and then state. Okay, so इसमें से इसका जो सही आंसर है that is 2, 3 and 4 is correct answer. 2, 3 and 4. Raniganj is West Bengal. Ramgarh is in Jharkhand. Talcher is in Odisha. Okay. Yeah. So Raniganj in West Bengal, and then Ramgarh in Jharkhand, and then Talcher in Odisha. Okay. Keep remember this thing. But Maulang is not in Arunachal Pradesh. Now it's your work and go and search it where it is. Okay. I mean in which state? Yeah. Then these are the coal producing area. You also remember this thing. Okay. Mawlong, Raniganj, Ramgarh, Talcher. Okay. Yeah. Then the another question is which of the following sites are obtained by the British East India Company under the Treaty of Sagwali in 1816. In the 1816, by the under the Treaty of Sagwali that happened in 1816, okay, the sites were found, obtained by this British Treaty of Sagoli. We'll see. This is what. Okay, so 2, 3, 4. Okay, 2, 3, 4 means Simla, Ranikhet, Nainital. This Simla, Ranikhet, Nainital. These are the places that has been found by them. Okay, in the Simla, Ranikhet, Nainital. Okay, so yeah, remember this point. Okay, and there was also 2, 3, 4. Here is also 2, 3, 4. So yeah, remember this thing. Now, with reference to the Global Environment Facility, which of the following statement are correct? It was established in 1991, and then only developed countries are donors to it. Now, only developed countries are donors to it. These Global Environment Facility. Okay, what do you think? Like, if another country wanted to, they will bar it? I don't think so. So this is the wrong statement becoming here, and now this is going to be true here. Okay, it was established. Okay, only one is correct. Then the next is, I thought like I would have marked this neither, but here is the answer that it was right. So remember, in this type of question you will have to guess like this. Okay. Then the next question, with reference to the creation of new All India Service, which of the following statement are correct? In the national interest, Rajya Sabha can pass resolution for creation of All India Service. Okay. And the resolution for creation of new All India Service must be passed by 2/3 majority of all of total members of the House. Okay. Resolution for creation of new All India Service must be passed by the Rajya Sabha by 2/3 majority of the total members of the House. So must be passed by the Rajya Sabha by 2/3 majority of total members of the House. I think we also now you will go and search that what majority is required here. Okay. Here is the only one statement is correct. Okay. Yeah, then the next question is, this was the fourth. The next question is, with reference to the baking soda, which of the following statement are correct? Correct. The sodium, it is a sodium hydrogen carbonate. It is used in the fire extinguisher. Okay. So here is the both statement is correct. Okay, it is sodium hydrogen carbonate. Okay, fine. Then it is used in the fire extinguisher. Okay, baking soda. Okay, so this is the both is correct. Now another is,
mission and then date of launch. I will not attempt this question, okay, because I would have not remember this thing, that's why. Okay, so I will not attend, but the answer is C. Okay. Yeah, then the another question, which of the following two are the major constitutional biogas? Okay, the methane and then the biogas. Okay, the carbon dioxide, the carbon monoxide, the butane. It should be the methane and the carbon dioxide. Yeah, I was thinking. Okay, so the answer is A, that is the 1 and 3. Okay, so methane and the carbon dioxide, these are the major constituent of the biogas. Okay, yeah, not the butane and carbon monoxide. So these are not. Okay, remember this point. Yeah. Okay, then the another question is, with reference to the Atal tunnel, which of the following statement are correct? This tunnel is world's largest highway tunnel. This tunnel is the world's longest highway tunnel, and this tunnel is built in the Pir Panjal range of Himalayas. Now I don't know in which range it is made, but anyone is going to write about the any range. So this Pir Panjal range is not very commonly come into mind to make your answer wrong. So that's why that logic it's become correct. And then the world's longest highway tunnel, Atal tunnel, this is the wrong. So only 2 is correct. Okay. Then the next is match the column, match the list. National Park, Wildlife Sanctuary, or then state or UT. So Dachigam is in Madhya Pradesh. This is not Rajasthan. No, Jammu Kashmir. The Dachigam is in Jammu Kashmir. I can say the A ka 4. So answer is here. That is D. Okay. So D is the answer, right? And Kevalada is in where? Is in Rajasthan. Yeah, it should be B ka 2. Yeah, this is right. And then Kanna is in MP, Periyar is in Kerala. Okay. These are what National Park or Wildlife Sanctuary. Then the next question is, match the list question is nuclear power plant and then state. Kakra Par and the Kaga and then okay. So we know that the Kakra Par is where? Is in the Gujarat. Okay. So Bika is, it should be the 4. So Bika 4, there is 2 options, B and C. Then another is the Kundakulam is in where? Okay, let's see the Kaiga is in Rajasthan. I think it should be Rajasthan. No, it's not. Thought. Okay, fine. So we need to remember this. Like I marked here wrong. I will get stuck between these two. So I was sure about the Kagrapar is in Gujarat. Fine. That the Kundakulam is in Karnataka or the Tamil Nadu. I had to take a guess here. So Kundakulam is in Karnataka, right? Ika 1. No, Kundakulam is in Tamil Nadu. Okay. So Kundakulam not is in K is equal to K is not. Okay. So that's why it is in Tamil Nadu. And then the Kaga is in Karnataka. Okay. So Kaga. Yeah. Sorry. K is equals to K can be. Okay. So the Kaga is in Karnataka. Then Kundakulam is in Tamil Nadu. And then Rawat Bhatta, this is in third, means in the Rajasthan. Okay. The next question is, given the below are 2 statements, 1 assassin and reach. Poverty line differs across the time and countries. Okay. Because the basic needs of people vary across the region and the over time. That is why the poverty line differs, because the people vary across. No, bilkul not. We can say that both true but not explained. But here it is, right? Okay. So here is the option is both A and R true and
It is the correct explanation of a. Okay. The basic needs of people vary across the region and over time. That is why the poverty line differs across the time and countries. Yeah, right. Okay. Poverty line differs across the time and countries. ऑफकोर्स, क्योंकि क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो एक मैक्सिमम प्राइस होती है उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे ना, उसकी टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि कितनी कैपेसिटी है लोगों की बाय करने की नहीं है, उसके देख करके देन पॉवर्टी लाइन डिसाइड होता है इस वजह से. देन नेक्स्ट इज arrange the following in the chronological order of their rule and select the correct answer from the code given below. Okay, here is the B option is correct answer from the code given below. This is repeated question, right? 3 1 2 4 3 1 and 2 4. Is this I have done? No. So 3 1 and 2 4. Balaji Vishwanath and then Baji Rao first. Okay, so and then Balaji Baji Rao and then Madhav Rao first. Okay, so remember like this. The first is Balaji Vishwanath and then the Baji Rao first and then the Balaji Baji Rao and then Madhav Rao first. The last one is Madhav Rao first, the first one the Balaji Vishwanath, and in between Baji Rao first and the Balaji Baji Rao. Okay, so Balaji Vishwanath, then last is Madhav Rao first and then in between Baji Rao first and then the Balaji Baji Rao. Here like this. And then 13 में क्या है, list 1 and list 2. Here is Maharashtra and Karnataka, Bihar, Tamil Nadu. Okay. Okay. This is for number of the seats allocated in the Rajya Sabha. Bihar should have more seats. C should be 3. No. आंसर तब तो आंसर रॉन्ग हो जाता, इसलिए इसका आंसर है डी. इसका आंसर डी. ओके, आंसर डी मतलब ए का जो है वो 3 है, महाराष्ट्र का 19 है एंड देन बी कर्नाटका का 12 है, देन सी बिहार का 1 है, देन कर्नाटका का डी 18. ओके, सो यहाँ पर इसका आंसर में क्या है कि मतलब देखो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है. कलर इज चेंज. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर लिस्ट को बोला है, ठीक है. एक नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा बताया है, मतलब इसमें जो बिहार से ज़्यादा सीट महाराष्ट्र को मिला है. ओके, तो ये समय याद रखना है कि महाराष्ट्र रीजन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है बिहार से. ओके, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली है ही. तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 19 जो है ए का 3 हो जाता है. तो बस ए का 3 हो जाता है, जैसे आंसर निकल के आ जाएगा. तो बस ए का 3 हो जाता है और फिर इसके बाद किसका है, दैट इज़ बी का 4. ओके, तो बी कर्नाटका यहाँ पे 12 है, कर्नाटका को 12 मिला हुआ है. ठीक है, कर्नाटका को 12 मिला हुआ है और फिर सी का 1 है, दैट इज़ बिहार का 16 हुआ है. ठीक है, बिहार को 16 मिला है, कि बिहार को कितना मिला है 16. सो बिहार को 16 मिला है और तमिलनाडु दैट इज़ डी का 2. तमिलनाडु को कितना मिला हुआ है, तमिलनाडु को मिला हुआ है ओके 18 मिला हुआ है. सो तमिलनाडु को 18 मिला हुआ है. ओह माय गॉड, मतलब ये ना ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है,
देखो तमिलनाडु को 18 मिला हुआ है, बिहार को 16 मिला है ना, तो कुछ अलग ही इसका और भी है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द न्यू पंबन ब्रिज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। एक सेकेंड गाइस, ओके। सो विथ रेफरेंस टू द न्यू पंबन ब्रिज के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड विच इज़ अ नवरत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ओके। And then India's first vertical lift railway sea bridge. Okay. So here you see, मतलब यहाँ पे अगर मैं गैस वर्क करूँ तो मुझे ये लगता है कि ये सही हो सकता है। फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, दोनों ही सही लग रहा है, तो दोनों ही सही कर दिया मैंने। ठीक है, इंडिया का कोई चीज़ फर्स्ट है इस तरह से तो सही होना चाहिए। वर्ल्ड का तो नहीं बोला ना, इंडिया का बोला, तो सही मैंने ले लिया एक नॉर्मल गेस की तरह। और ये इसके देखो गलत भी बनाने का ट्राई करेगा तो ये विकास रेल निगम, इसके दिमाग में ना एग्जामिनर जो सेट करेगा पेपर, तो उसके दिमाग में ऐसे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, सही। इसलिए देन नेक्स्ट देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग, अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांस, ये क्वेश्चन भी मैं नहीं करती, ये क्वेश्चन नहीं करती मैं। तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करती। देन जो है असर्सन है रीजन का क्वेश्चन है। अच्छा एक सेकेंड भाई, ओके। सो असर्सन है रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पे। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बिल्कुल नहीं। सो बट यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पर ये सही है। अच्छा, तो इसका रीज़न यही है कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, इस वजह से। ठीक है, ओके, अब ये याद रखेंगे। तो पता तो था बट इसका रीज़न यही है, ऐसा मतलब मुझे लगा था ब्रिटिश की कॉलोनियल इम्पैक्ट की वजह से है, बट कोई नहीं। देन असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन अगेन है यहाँ पे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड एंड देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। अब ज़रूरी नहीं है जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो सब के सब गेम खेलने लग जाए, तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अरे भाई फिर भी ये एक्सप्लेनेशन है, कैसे कर रहा है, क्या पागलपंती है इस एग्जामिनर की, गधा ही है यार भाई। सो बिकॉज मोर देन यहाँ पे ओके, एग्जामिनर बहुत बेकार पागल ही लगता है मुझे, कुछ भी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बकवास। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, ओके तो इसका ठीक है। विथ रेफरेंस टू द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विच द फॉलोइंग करेक्ट। तो देखो ये लॉन्च हुआ था जून 2022 में। इट वॉज आइडिया प्रपोज एट द COP 25 इन मैद्रिद स्पेन। अब देखो ये जो मैद्रिद स्पेन है ये मतलब मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर ओनली वन ही करेक्ट है। सो यहाँ पे ओनली वन ही करेक्ट है, आई डोंट नो। ये जो है हाँ, ये जून 2022 में लॉन्च हुआ, यहाँ पे ये सही है स्टेटमेंट, और ये जो है दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। ओके, इसके पहले जो देखा था हमने पता नहीं कहाँ चला गया, वो स्टेटमेंट ही नहीं दिख रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट देखते हैं।
तो विथ रेफरेंस टू द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हाँ तो ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ पे ये गलत हुआ, मतलब ऐसे कोई भी लॉजिक नहीं काम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो मेरा अपना खुद का है, अगर काम करता है ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं। सो आप लोग भी अपने हिसाब से जो फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका आइडिया क्या है, ये प्रपोज हुआ एट द COP ओके। सो यहाँ पे ये जो हुआ ओनली वन स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो है गलत है। ये आइडिया मतलब कहाँ पे प्रपोज हुआ था, ये ऐसी स्टेटमेंट देख लेंगे थोड़ा, और प्लेस है तो गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर ट्राइब है, हैबिटेड है, तो देखो मुझे तो पिग्मी मसाई इन सब का पता होना चाहिए, बुशमन कहाँ पे, तो मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगी इसको, आई विल नॉट अटैम्प्ट दिस, ठीक है, मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगी। ओके देन दी नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका आंसर जो है ओनली 4 करेक्ट है, मतलब 4 ही जो है गलत है। ओके तो 4 जब गलत है यानी कि पिग्मी जो है कॉन्गो बेसिन में देखने को मिलते हैं, एस्कीमो जो है नॉर्दर्न कनाडा में देखने को मिलते हैं, बुशमन जो है कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, तो बुशमन जो है कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, एस्कीमो जो है वो नॉर्दर्न कनाडा में, और पिग्मी जो है वो कॉन्गो बेसिन में, ठीक है। अच्छा मसाई देख लेना कहाँ पे होते हैं ये, नॉट इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, तो कोई और रीजन है वो देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर लाइटर देन द एयर। तो देखो लाइटर देन द एयर, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं होना चाहिए, ओके हीलियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं है, सो हीलियम है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ हीलियम जो गैस है वो लाइटर होती है देन द एयर, ओनली helium. The next question है with reference to the earthworms. With reference to the earthworms, which of the following statement are correct? earthworm जो होता है वो improve करता है सॉइल की fertility, are known as a farmer's friend, ठीक है। An earthworm has 2 pairs of hearts, ठीक है, 2 pair of hearts होते हैं, I don't know कि 2 pair होते हैं 3 pair होते हैं, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये तो चीज़ जो है फैक्ट है, तो ये जो गलत है इसका आंसर ओनली 1 है इस करेक्ट। मतलब केचुए के 2 हार्ट होते हैं, 2 हार्ट के 2 पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, ऐसा बोला था, 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट था, ऐसा गलत स्टेटमेंट है इसमें। हाँ तो गलत है, जब स्टेटमेंट दिया गलत है कि सही वो हमें बताना होता है, तो क्वेश्चन ही ऐसा बनाए तो हमको सोचना पड़ेगा ना गलत है कि सही है। क्वेश्चन ही गलत है तो हम बता जब पढ़े हो जान जाए गलत, मम्मा सोचा था, सामने वाला कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना, तो देखना पड़ता है, आप चुप रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सबमिट करता है उसका रिपोर्ट को टू द लोकसभा, अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है कंसिस्ट करता है 15 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, 15 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा पब्लिक अकाउंट कमेटी, अच्छा ओके। टू लोकसभा ठीक लग रहा है मुझे, बट 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, इसका आंसर जो है ओनली डी, मतलब डी है, ओनली 1 करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग वॉर्स एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ, सिख हुआ, अफगान हुआ। अब इन सबका आपको ना पता होना चाहिए कि कब ईयर, कौन से ईयर में कब क्या हुआ। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था लाइक कब हुआ था, 1769 से समथिंग हुआ था ना, हाँ तो 1769 से 82 तक हुआ था, इसी तरह से हुआ था, तो ये तो एंग्लो फ्रेंच का नहीं पता, सिक्का 1516 में हुआ था, मतलब 1915-16। अंदर एंग्लो अफगान तो पहले हुआ था 6 से, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है वो ऑब्वियसली पहले होना चाहिए, तो इस तरह से 2-1
एंड 4 3 हो गया। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। सोशल इंडिकेटर पॉवर्टी का नहीं है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, साइज ऑफ हाउस, इलिटरेसी। सब्जी लगी है। तो यहाँ पे इलिटरेसी नहीं होना चाहिए मुझे जहाँ तक माय गॉड, इसका आंसर तो 4 है, ओनली 4। साइज ऑफ द हाउस वो पॉवर्टी में नहीं आता, बट इलिटरेसी भी आती है पॉवर्टी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है आंसर इसका यहाँ पे साइज ऑफ हाउस नहीं आता है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलिटरेसी भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे अरेबियन सी। देखो जो पेरियार है और पेन्नार है यहीं पे आती है। पालर आई थिंक यहाँ पे जाती होगी ना, भी गलत हो गया। ओके, सो इसमें सिर्फ एक ही रिवर है जो कि 3 भाग सही है। अरेबियन सी में आता है, तो वो है पेरियार। पालर एंड पेन्नार जो है वो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, पालर और पेन्नार जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है, पेरियार जो है वो अरेबियन सी में आती है। तो ये ध्यान रखना, जो पेरियार है दैट इज़ पेरी, वो यहाँ आता है, और पालर एंड पेन्नार वो कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 बुद्धिस्ट, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस। आप इसी चीज़ को अरेंज करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, सो यहाँ पे अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट करें। कोड क्यों मिला, मतलब सबसे पहले कौन सा स्टेब्लिश हुआ था, फिर कौन सा स्टेब्लिश हुआ था। हाँ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। अच्छा, नहीं, मतलब पहले कौन सा हुआ था फिर कौन सा हुआ था। ओके, इस तरह से। तो देखो पहला तो यहाँ पे वैशाली, राजगिरी, क्या था मेरा ऐसा से था ना, रवा पक्का है ना। अब जब ये ऐसा था राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदकुलम। वैशाली, देन पाटलिपुत्र, कुंदकुलम, ये हो गया। हाँ, ये सही है। तो देखो रवा पका से हमें ये याद रखना है कि आर से क्या हो जाएगा, राजगिरी पहले आता है, देन वी से वैशाली, एंड देन पा से पाटलिपुत्र, देन का से कुंदकुलम। ओके, इस तरीके से, मतलब ये इसका नहीं होने कैसे याद रख सकते और क्या। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो आयरन डॉम जो है फ्रांस, यूएस और इजराइल का दे दिया है ऑप्शन। देखो अब यहाँ पे, तो इसमें जो आंसर है इसका सी होना चाहिए, दैट ओनली 3। अब ये तो क्वेश्चन मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं करती, ओनली 3 इसमें करेक्ट है। आयरन डॉम सिस्टम जो है बिलोंग करता है किसको, तो ये है ओनली 3 इसका आंसर है, इसराइल को बिलोंग करता है। फ्रांस और यूएस से तो बहुत ही ईजिली सबके नाम आ जाते हैं ना, तो इसलिए ये नहीं है, इसका आंसर सिर्फ एक ही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्कीम नॉट इंक्लूडेड इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखते हैं, उल्लास, दीक्षा, भारत निर्माण प्रोग्राम। तो फिर कौन से नहीं इंक्लूडेड है ना, यही पूछा। तो भारत निर्माण प्रोग्राम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नहीं इंक्लूडेड है। उल्लास है, दीक्षा है, तो ये नहीं है। ओनली 3 है जो कि नहीं इंक्लूडेड। ओके फाइन, ये क्वेश्चन तो मतलब स्किप करने लायक है, स्किप नहीं कर देती तो गलत हो जाता, कोई बात नहीं। इसका आंसर सिर्फ ओनली 3 है। द नेक्स्ट इज
which of the following pairs of a part of Indian Constitution and its subjects are not correctly matched. Okay, देखो यहाँ पे पार्ट 4A है एंड में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। पार्ट जो है 6 है उसमें स्टेट है, अच्छा 5 and 6, हाँ ठीक है। एंड पार्ट ये 11 म्यूनसिपैलिटीज़ है, 11 and 12। एक सेकेंड, नॉट करेक्टली मैच बोला है ना। ओके तीनों तो बाकी सही है, तीनों तो सही है। और अच्छा वो शेड्यूल है 12 और 13, हाँ तो यहाँ मतलब 11 और जो 12 है वो शेड्यूल है। तो देखो यहाँ पे ये जो है 11 ये गलत है, पार्ट नहीं है। ओके सो इसलिए ओनली 3 इज रॉन्ग। देन विच इज द फॉलोइंग, अब देख लेना कि कौन से सच सही वाले पार्ट में है वो। देन अब देखते हैं कि विच इज द फॉलोइंग एंजाइम्स रिलीज्ड इन स्टमक फॉर प्रोटीन डाइजेशंस। तो देखो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, क्रिम्पटेसिन। मुझे तो ये जो है सारी सीन से ही नहीं है, नहीं पता मुझे इसका आंसर, बट रियल आंसर इसका ओनली 3 दैट इज़ पेप्सिन है। अच्छा तो नेक्स्ट देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द ऑपरेशन ओलिविया विच कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। इनिशिएटिव इंडियन कोस्ट गार्ड का टू प्रोटेक्ट ओली रिडली टर्टल्स along the coast of Odisha and olive is carried out during the month of August, which is nesting time of the olive ridley turtle. ओके सो यहाँ पे जो अगस्त है ना यही गलत होगा मुझे जहाँ तक कि लगता है, इसलिए यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट सही है। ओके अच्छा इन कोस्ट गार्ड ये तो सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में। अब यहाँ पर बोल दिया है तो हमें बताना है, पहले पूना पैक्ट हुआ, गांधी इन्वेंट। अब देखो सेकेंड राउंड टेबल जो है वो 1931 में हुआ है ना। अच्छा पूना पैक्ट जो हुआ था 1929 अप्रॉक्स आई थिंक मे बी, ठीक है। सो गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 में हुआ, पहले ये हुआ तभी तो ये हुआ। एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1920 के अप्रॉक्स हो रहा था। अच्छा सीरियन यहाँ पर ये देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, यहाँ पे इसका आंसर है 3, 4 and 1, 2। 3, 4 and 1, 2 मतलब 3 गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ, फिर ये हुआ, और फिर जो है पूना पैक्ट हुआ, फिर ये हुआ, क्योंकि ये 1930 वाला है। ओके नो नो हाँ उसका एंड तो उसके बाद होता है, एक सेकेंड। ओके चलो हाँ जी ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे अब हमें पता चल गया है कि जो गांधी इरविन पैक्ट होता है वो बाद में होता है। नहीं बेटा ये पहले होता है तभी तो ये होता है, ठीक है। तो पहले ये होता है, फिर जाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अंत होता है वो पूना पैक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो पूना पैक्ट पहले होता है या ये बाद में होता है, ठीक समझ गए। सो मतलब इससे ये पता चला कि पूना पैक्ट जो 1931 के बाद होता है, और ये भी जो है 1931 के बाद होता है या। सो इट्स अराउंड 1942 में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन लास्ट लेटर। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट वाला ही है क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर 11, 12 और 17। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं स्किप कर देती। अच्छा बट इसका आंसर जो है वो है ए, दैट इज़ 17th लोकसभा जो है आज के टाइम पे। डी का क्या आंसर है, दैट इज़ 1 ओम बिरला पता होता मुझे बस, तो डी तो 17th ही पता है मुझे, दैट इज़ ओम बिरला। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू दी लाइकन्स। देखो इज लाइकन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। अच्छा हाँ ठीक है। एंड देन लाइकन्स ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरियाज, ठीक है। सो पॉल्यूटेड एरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होते बल्कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं ना वहाँ पर होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट ही बोलते हैं। सो ये होता है यहाँ पे, बट उसको एक पॉल्यूटेड एरिया बोलने चाह रहे थे। काई लगे तो हम उसको भी बोलते हैं कि गंदा है, बट वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर क्या है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द नॉर्थ इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही जल विद्युत के संदर्भ में। देखो देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन। अच्छा, हिमालयन रीजन में, ओके, एंड देन ईस्टर्न यूपी एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज हिमालयन सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ लाइज इन द बाउंड्री ऑफ नेपाल। अच्छा, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ओके, ठीक है। क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय सिचुएटेड है उनके नॉर्थ जो कि लाइज इन द बाउंड्रीज ऑफ नेपाल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असरसन रीजन का, दैट इज टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स खालसा एंड जागीर्स ऑफ सल्तनत बिकॉज जागीर comprised लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। अच्छा, so here is just a second, so here is Jagis comprise the land under the control of state. What do you mean by this Jagi? अच्छा sorry under the control of state, ठीक है, एक सेकेंड देखो यहाँ पे, बिकॉज जागीर इज comprised of a land under the control of state, that's why the territory sultanate could be broadly divided into the खालसा and जागीर। अच्छा ठीक है, so बट यहाँ पे मुझे, अच्छा स्टेट बिल्कुल नहीं, तो कंट्रोल द स्टेट तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर इसका जो आर है वो गलत है, ए है जो वो ट्रू है, ठीक है। ऑब्वियसली देखने में लग रहा है, ठीक है। ये जागीर का मतलब लैंड का कोई मालिक होगा, ना कि जो है स्टेट, ठीक है, तो ये पर्सन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर द विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे एक सेकेंड देखते हैं यहाँ पे आंसर किसका क्या होगा। तो ये फाइनेंस आना चाहिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं, रूरल डेवलपमेंट मुद्रा योजना कम्स, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्योरली आना चाहिए। तो देखो, तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट का नहीं, रूरल डेवलपमेंट भी नहीं लग रहा, तो इसलिए ये हट जाएगा और ये आएगा, जो आपको याद है वही है इसका आंसर, ठीक है, तो यही है सी आंसर इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो देखो एस सोशलिस्ट सेकुलर एंड सिर्फ 1 and 2 होना चाहिए, तो देखो 1 and 2, आई भी है, इंटीग्रिटी भी है, ठीक है, ये नहीं है, C4 नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो जवाहर रोजगार योजना कब आया, फिर ये कब आया, अच्छा, तो ये वाला तो हम तो तो ये जो क्वेश्चन है मैं तो नहीं करती क्योंकि ईयर नहीं याद है मुझे, इसलिए, बट इसका आंसर जो है वो डी है, ओके। सो ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एज पर दी जस्ट सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो यहाँ पे एज पर द 1 district and 1 product स्कीम ऑफ यूपी मुंज प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मुंज प्रोडक्ट क्या है देखते हैं। तो जिसका आंसर है दैट इज़ डी, दैट इज़ 1 and 2 अमेठी एंड सुल्तानपुर। मुंज प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सो सुल्तानपुर की डिस्ट्रिक्ट जो है वो और अमेठी की डिस्ट्रिक्ट, तो इन दोनों से है, ना कि संत कबीर नगर। अच्छा, इससे नहीं है, बाकी 1 and 2 से है, 1 and 2 से है, बट इससे नहीं है। ये क्वेश्चन तो मतलब कैसे ही करते हैं, तीसरा पता होता कि ये नहीं है तो हम कर सकते थे। ओके, सो इसमें आंसर जो है 1 and 2 आता, 3 पता होता तो हम कर पाते, तो ये ठीक है, ओके। इसका आंसर जो है डी है। ऐसे क्वेश्चन चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवोल्ट्स एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवोल्ट को मैं बताना है, देखो सन्यासी हुआ था, कौन सा पहले हुआ था, इस तरह से बताना है हमें। इसका जो आंसर है दैट इज़ डी, यानी कि पहले 4 वाला हुआ था, दैट इज़ सन्यासी हुआ था पहले, ओके। पहले सन्यासी हुआ और फिर जो है इंडिगो हुआ 1955 में, ओके। देन जो है कूका हुआ एंड देन जो है पबना हुआ। सो पहले क्या हुआ, पहले सन्यासी हुआ, देन जो है इंडिगो हुआ, देन हमारा कूका हुआ एंड देन पबना हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखना है हमको, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट वाला है। अब लिस्ट वाले में देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एरिया ऑफ गोल्स है। गोल 1 जो है क्लीन वाटर सैनिटेशन, बिल्कुल नहीं। एंड अब जो देखो फिर यहाँ पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी नहीं है।
क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। 2 एंड द पावर 10 ऑल फॉर्म्स ये है, ठीक है। तो 1 ए का 3 है, ठीक है। सो ए का 3 है, ये सही है, ओके। देन जो है गोल 6 गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए। सी का 3 का नहीं हाँ ठीक है, सही है। तो जो बी है उसका 4 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, ओके। तो ये हमने देख लिया, अच्छे दिख ही रहा था। तो फिर बात आती है यहाँ पे सी का जो है वो 1 है या 2 है, देखते हैं। तो गोल 4 जो है उसका क्लीन वाटर सैनिटेशन या फिर क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा बेटा, तो इसका जो है क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। सो सी का जो है क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? दैट इज़ सी, ठीक है। तो गोल जो 4 है उसका क्वालिटी एजुकेशन लाने का है, एंड गोल 1 का जो है ए का 3 है, दैट इज़ 2 एंड ये क्वालिटी वाला। बिल्कुल जा। देन यहाँ पे जो है बी का गोल 3 क्या है? तो गोल 3 जो है हमारा वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ओके। तो इस तरह से आंसर इसका ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द इंडिया। फाइनेंशियल कमिटी, एस्टिमेट आता है, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग आता है, काउंट तीनों को तीनों आ जाता है, ओके। एक पल के डाउट लगे ना तो नहीं याद रखे होगे तो हो जाएगा। पब्लिक का अंडरटेकिंग आता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ रेफरेंस टू द ओजोन लेयर। देखो यहाँ पे ओजोन लेयर जो है सील करता है सरफेस ऑफ द अर्थ को फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, सही है। देन ओजोन डिप्लीशन हैज़ बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके। देन इस क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्ट। देखो डे है डेट है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करती। ओके 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ओके ठीक है। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को, सही लग रहा है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ही बचता है, ठीक है। तो इस तरह से पता तो था, ये तो हो गया, इसमें यही गलत है, ओके। हाँ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 मार्च को, ये दोनों सही बस यही ना। मैंने सहा ही नहीं कि नन हो, तो इसलिए ये अच्छा। तो ओके हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वावलंबिनी अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इज लॉन्च बाय दी विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। सो स्वावलंबिनी देखो अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्ट के लिए, लॉन्च बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी हो सकता है बट नहीं है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला है। अच्छा सेम टू सेम ही आ गया, सो ओके। इसका आंसर ये है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला ही सिर्फ और सिर्फ, ये नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 को लिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये राइटर है, ये बुक है, किसने कौन सी बुक लिखी है? देखो कथा सरित सागर नल चंपू। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पता है, ओके। बट इसका आंसर जो है वो ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट टू द लास्ट। अब देखो यहाँ पे लिस्ट टू द लास्ट, पहले जो है कौन सा बना था फिर कब बना था। तो इसका आंसर जो है वो बी है। ये तो मुझे भी अच्छे से याद नहीं था इसलिए। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर बी है, दैट इज़ पहले 3 बना था, नागालैंड पहले बना था एंड देन फिर जो है पंजाब बना, ओके नागालैंड बना, फिर पंजाब बना और फिर सिक्किम बना और फिर बना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो पहले नागालैंड बना एंड देन पंजाब बना और फिर बना सिक्किम एंड देन बना हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नागालैंड बना, पंजाब बना, सिक्किम बना, अरुणाचल प्रदेश बना, नागालैंड बना, पंजाब बना, सिक्किम बना एंड देन अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है। सो ये हो गया। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू द जनानीपत अवार्ड जो है, ये इसके स्टेटमेंट देखना है हमको। तो 58 जनानीपत पीठ अवार्ड जो है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ज्ञानपीठ अवार्ड
कन्फर्ड अपॉन द संस्कृत स्कॉलर जिनका नाम है जगत गुरु रंभाद्राचार्य जी। एक सेकंड गॉड। सो यहाँ पे इसका आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट ही सही है। और द स्टेटमेंट नेक्स्ट वाला सेकंड है कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो गिवन इन 1965। तो इसमें ईयर को लेकर के मतलब वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर ये क्या दोनों स्टेटमेंट ही सही है। अच्छा भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था और ये भी नहीं पता था, मतलब बेसिकली तो फिफ्टी ज्ञानपीठ अवार्ड ये वो ये सही है। ओके तो यहाँ पे ये सही है, दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लड इज आर करेक्ट। तो ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ब्लड जो है कंपोज है प्लाज्मा का एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, देन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। ओके, तो प्लाज्मा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, तो दोनों ही सही है स्टेटमेंट। ओके ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर बेसिस ऑफ देयर एरिया एंड सेलेक्ट द एरिया। असेंडिंग ऑर्डर एरिया के बेस पे देखना है हमें। दिखाओ सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन किसका होगा? हिमाचल प्रदेश। अच्छा उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। नहीं यहाँ ये तो पहले हरियाणा है। अच्छा सो फर्स्ट जो है वो हरियाणा है। तो ये तो मुझे मतलब पास का दे दिया ना, तो सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए देख लेते हैं। तो देखो पहला इसमें हरियाणा होगा और फिर जो है पंजाब होगा, फिर जो है पंजाब होगा और फिर उत्तराखंड होगा एंड देन हिमाचल प्रदेश होगा। ओके सो पहले क्या है? पहले हरियाणा है, फिर पंजाब है, ठीक, और फिर उत्तराखंड है एंड देन हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, एरिया वाइज पहले हमारा हरियाणा है और देन पंजाब है, देन उत्तराखंड है और तो ठीक है, तो पहले हरियाणा है, फिर पंजाब है और फिर उत्तराखंड है, देन हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान। ऐसा नहीं है कि इसके ईयर को याद करना इम्पॉसिबल है, बहुत ही पॉसिबल चीज़ है, बट स्टिल ऐसे देखने में थोड़ा सा डर लग जाता है। देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है ए, मतलब पहले 1, 4 एंड 3, 2 हुआ। सो जो है पहले क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, एंड देन जो है वेवल प्लान आया, ओके, और फिर आता है शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, एंड देन आता है कैबिनेट मिशन। तो देखो क्रिप्स मिशन फर्स्ट में है, क्रिप्स मिशन लास्ट में है कैबिनेट मिशन, फर्स्ट में है क्रिप्स मिशन, लास्ट में है कैबिनेट मिशन, देन बीच में है हमारा वेवल प्लान एंड शिमला। सो वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस है बीच में। सो वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट में है क्रिप्स मिशन, लास्ट में कैबिनेट मिशन, ओके, एंड देन जो है वेवल प्लान है बीच में और फिर शिमला कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं कि असर्शन रीजन का है फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन इन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स। अच्छा, बिकॉज स्टारवेशन कैन स्टिल अकर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, सही है, तो मुझे भी सही लगा, इसलिए सही है इसका आंसर, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग्स वर द मेंबर्स ऑफ द फजल अली कमीशन। तो देखो यहाँ पे कौन कौन थे मेंबर इसके फजल अली कमीशन के। तो KT शाह, पनिक्कर, सीतारामैया, ये मेंबर तो बिल्कुल नहीं थे। सीतारामैया पता नहीं, कंजरू थे और KM पनिक्कर थे। अच्छा, सीतारामैया नहीं थे, तो मैं जैसे ही तीसरे को हटाती हूँ तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। कुंजरू तो थे ही, चौथा था, तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब जिसको पता है कि कुंजरू थे तो भी आंसर आ जाता है इजीली, दैट इज़ 4, 2 एंड 4। ठीक है,
के हम पनिक करते हैं। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है, यही तीन ही लोग थे, फजल अली के हम पनिकर और कुंजरू। क्या देन नेक्स्ट है हमारा, विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं देखो। यूएनडीपी ने पब्लिश किया था उसका फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990s में, विच हैड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड फर्स्ट टीम डेवलप की थी दैट डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज लेड बाय द महबूब उल हक एस प्रिजनर। तो इसका आंसर जो है सिर्फ फर्स्ट टीम दैट इंडेक्स वाज लेड बाय द ओके। तो यहाँ पर मैं होती तो बहुत ही कर देती, क्योंकि मैं से ऐसा करता हूँ। इसका जो आंसर है डी, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। अच्छा ओके, सो ये है यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन। या देन नेक्स्ट देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग सेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है हमको, कौन पहले है कौन ऐसा, उसके बाद फिर उसके बाद। तो देखो ये तो याद करने का मैंने कोशिश किया था बट याद नहीं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है, दैट इज़ 3, 4 and 1 and 2। ठीक है, सो 3, 4 and 1, 2 में है, 3, 4 and 1, 2 में। देखो यहाँ पे 3, 4 में क्या आ जाता है, हमारे पहले नामदेव आ जाते हैं। ओके, सो पहले नामदेव हैं, फिर कबीर है। ओके, और फिर जो है नानक आते हैं, एंड देन चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है, सो नानक और चैतन्य महाप्रभु ये तो ठीक है। देन नामदेव एंड कबीर पहले आते हैं। ठीक है, पहले नामदेव एंड कबीर आते हैं, मतलब हमें पता है पहले नामदेव एंड कबीर आते हैं, यानी कि 3 and 4 दिख जाना चाहिए हमें। तो ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, और हमें पता होना चाहिए था कि जो ये नानक हैं, देन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 बैठ रहा है, यहाँ पे ये बैठ रहा है, तो यही आंसर हो जाता, सॉरी यहाँ पे यही आंसर हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, सो ये मैंने कह दिया कि यहाँ पे पहले कौन कौन आता है, नामदेव आते हैं पहले, देन कबीर आते हैं, और फिर आते हैं नानक, और फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक, दैट इज़ इसका आंसर बी फॉर बॉल है। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखो डायमेंशन नहीं है फूड सिक्योरिटी के, तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है बिल्कुल। ओनली 4 जो है यही डायमेंशन नहीं है, तो आंसर इज सी हियर। एंड देन नेक्स्ट देखें कि कंसिडर टेन्योर ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अरेंज इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है कि प्रेसिडेंट को एंड फिर अरेंज कराएं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट टू द लास्ट। यहाँ पर ठीक है, तो मैंने इसको याद नहीं किया होता तो मैं इसको हटा देती, नहीं करती इसको। अच्छा जस्ट इसका जो आंसर है देखो यहाँ पे, दैट इज़ 1, 4 and 2 and 3 है। 1, 4 and 2 and 3 है यहाँ पे, तो ये 1, 4 and 2 and 3। ठीक है, देखो 1, 4, 2 and 3 है, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है पहले पहले प्रेसिडेंट थे, और फिर बनते हैं वेंकटरमन, एंड देन जो है KR नारायण, और फिर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो पहले नीलम बने, और फिर लास्ट में APJ अब्दुल कलाम, और बीच में आते हैं ये वेंकटरमन और ये नारायण। अच्छा या तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। अभी देखो यहाँ पे एसिड है, एसिड फाउंड इन, देखो लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है हमको, तो वो कहाँ पे मिलता है, कर्ड में मिलता है। सही है, नॉट करेक्ट पूछा ना। देन
टार्टरिक एसिड कहाँ पे मिलता है हमें? ग्रेप्स में मिलता है। अच्छा ठीक है। एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलता है? तो पोटैटो पे लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, आई थिंक ये जो है यहाँ पे ये गलत है। ओके ठीक है, तो पोटैटो वाला गलत है यहाँ पे। सो ओनली 3, दैट इज़ ऑप्शन सी। ओके, क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है सी, दैट इज़ ओनली 3 इज़ रॉन्ग। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो है इज और आर पार्ट ऑफ देवीपट्टन डिवीज़न इन द यूपी। देवीपट्टन डिवीज़न जो है यूपी का, उसका पार्ट है। तो बस्ती, बहराइच, या बलरामपुर, तो हमें पता होना चाहिए ना, बट लेकिन कैसे पता होगा भाई? ठीक है, सो देखो, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज और आर पार्ट ऑफ देवीपट्टन डिवीज़न ऑफ यूपी। सो यहाँ पे इसका आंसर जो है 2 और 3 आते हैं। ये क्वेश्चंस तो मैं ये क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करती, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं आता। इसका जो आंसर है वो 2 और 3 है, दैट इज़ बहराइच। ओके, बहराइच और बलरामपुर। ठीक है, और ये बलरामपुर। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हमारा स्विस कैनाल कनेक्शंस, जो ये कनेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, स्विस कैनाल जो है ये कनेक्ट करता है स्विस कैनाल रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। अच्छा ठीक है, हाँ, तो इसमें इसलिए 2, 3 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है इसका सही, ना कि इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये याद रखना। तो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है स्विस कैनाल। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यू अमंग द फॉलोइंग हैड वॉन, मतलब किसने जीता था इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2025। तो इस तरह से नेक्स्ट करंट न्यूज़ में जो रहेगा उसको ही पूछ लेगा। अच्छा, तो देखो किसने जीता था बुकर प्राइज, मुझे नहीं पता, और इस क्वेश्चन को मैं हटा दूंगी, मैं नहीं करूँगी इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ओके। देन इसका आंसर जो है 1 और 2, दैट इज़ बानू मस्तकान, फिर दीपा बस्ती। अच्छा ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरसना रीजन का है। बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द फतेहपुर सिकरी बाय द मुगल एम्पर अकबर। ठीक है, देन बिकॉज अकबर बिल्ट दिस मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। ऐसा लगता है सही है, तो अच्छा ये सही लगा मुझे, बट यहाँ पे गलत है। आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, आर जो है क्या है यहाँ पे फॉल्स है। ठीक, सो फतेहपुर सिकरी पे बुलंद दरवाजा बनाया अकबर ने, ये सही है, बट यहाँ पे सन जहांगीर के बर्थ को कमेमोरेट सेलिब्रेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए नहीं, तो ये गलत है स्टेटमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर ये गलत है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देखते हैं कि कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ द कमिटी यूनियन के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल गलत। तो ए का अगर 1 है तो दोनों ऑप्शन नहीं है, सी और डी हट गया हमारा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव। अच्छा नहीं देख लेते ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के तो हमारे कौन थे? अम्बेडकर तो पक्का थे। ठीक है, तो यही तो थे, सी का 3 होना चाहिए। देखो सी का 3 तो सब में दे दिया, वाह वाह वाह। यूनियन के थे हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये यूनिटी बना करके रखते थे जवाहरलाल नेहरू। ए का 4 होना चाहिए, दैट इज़ ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज़ बी। ओके, और इसमें देख लेते हैं बी का 1 है, राजेंद्र प्रसाद रूल प्रोसीजर। ठीक है, एंड देन फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कृपालिनी, डी का 2। ओके, सो आंसर बी इज़ करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत पोल एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो भारत पोल एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। तो ये देखो, ये जो है इसका तो किसने डेवलप किया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, इतने सारी चीज़ें दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है इसका? तो इसका आंसर तो भाई ये वाला तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं नहीं करती, ये मुझे नहीं आ रहा है इसलिए नहीं करती। सो ये नहीं करती।
ठीक है, तो ये मैं नहीं करती। इसका आंसर जो है ओनली वन, दैट इज़ डी है। डी इसका करेक्ट है, ओनली वन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारत पोल को डेवलप किया है, ना कि रिसर्च एनालिसिस इंटेलिजेंस ब्यूरो, ना ही और ना इन्फोर्स डायरेक्टर। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट देखते हैं कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। डॉल्फिन्स एंड वेल्स जो है ब्रीथ करते हैं थ्रू द ब्लो वेल्स और ब्लो होल्स। अच्छा, अर्थवर्म ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन। दोनों ही सही है। ओके, डॉल्फिन और वेल्स ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते। देखो यहाँ पर भी हिंदी नहीं लिखा। ठीक है, सो यहाँ दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ओके, लिस्ट वाला अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि लिस्ट वाला है स्टेट एंड हाईएस्ट पीक। तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। अच्छा, धूपगढ़ बिल्कुल नहीं। सो अच्छा, मिलाना है हमको। सो ये जो है धूपगढ़ कहाँ पर है? अच्छा, एमपी। तमिलनाडु का देख लेते पहले। दोडा बेट्टा है, दैट इज़ ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 है, 2 ही ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। देन राजस्थान में गुरु शिखर होना चाहिए ना, बी का 3 होना चाहिए। हाँ ठीक है, बी का 3 है। एंड देन एमपी में होना चाहिए धूपगढ़, दैट इज़ डी का 1 होना चाहिए। नो, यहीं पे तो गलत हो। अच्छा हाँ, सही है, तो डी का 1 हो गया, तो यही एक ऑप्शन बचा यहाँ पे। और सी का क्या होगा? सी का 4, मतलब नागालैंड में सारामती है। हाँ ठीक है, ओके गुड, ए का 2। सो इस तरह से हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं असर्सन है रीजन का। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल यील्ड करता है रीजन रिटर्न इन फ्यूचर। हाँ, एंड बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ मेक द पीपल मोर प्रोडक्टिव। ओके ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, देन विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली जो हुआ था, एक्सला चापले 1748 में हुआ था। ये 1748 में एक्सला चापली ये ट्रीटी हुआ था। एक्सला चापले का ट्रीटी हुआ था। तो इसमें देखते हैं ये कब हुआ था, मतलब इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुआ था तब। मद्रास वॉज रिटर्न टू द ब्रिटिश। देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही क्या है? सही है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुआ था, मद्रास वॉज रिटर्न। नो 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 नो, तू खा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ, तो ये हमने देख लिया। ओके, अब अच्छा हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि गोबी डेजर्ट कहाँ है? स्प्रेड अक्रॉस द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि चाइना तो है पक्का। अरे मुझे लगा हाँ चाइना तो है पक्का। ठीक है, चाइना तो था ही, इतना पता था मुझे। 1 और 2, सो 2 वाला तो देखो 3 है ना, तो उसमें से हमें चूज़ करना पड़ता। 1 दैट इज़ मंगोलिया। सो मंगोलिया जो है वो बीच में है, तो उस साइड तो आता ही नहीं। तो अच्छा, अरे भाई गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना में, इतना देख लो, गलत हो गया मेरे तो। ठीक है, सो ये थोड़ा सा धुंधला था मेरे दिमाग में, इसलिए गलत हो गया। सो इसका आंसर क्या होता? 1 और 2 दैट इज़ मंगोलिया और चाइना के बीच है। रसिया और कजाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं आता, तो रसिया हटा देते हैं हम लोग, दैट इज़ 3 हटता, तो ये गया बी वाला ऑप्शन चला जाता। कजाकिस्तान 4 हटा देते, सी चला जाता, तो बच्चे चाइना तो श्योरली था, तो आंसर ए आ जाता। ठीक है, तो ऐसे आंसर्स को निकालना भी सीखो। तो नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वर्ल्ड। दाल चावल खा ली तो एक सेकेंड। ओके, सो या नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे रिवर्स है, ओशन है, पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स है, एंड ग्राउंड वाटर है। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी अरेंज करना है। वर्ल्ड सोर्स ऑफ वर्ल्ड वाटर का डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। शुद्ध पानी जो है ना, अच्छा ये वही वाला है। ओके, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पोलर आइस एंड ग्लेशियर में, या फिर सबसे ज़्यादा तो ओशन में। हाँ ठीक है। अरे भाई शुद्ध वाटर का तो पूछा नहीं है, पहले ओशन ही कर लो। ऐसा नहीं बोला कि शुद्ध वाटर, ठीक है, सोर्स ऑफ वर्ल्ड वाटर दे दिया है, तो जितना क्वेश्चन बोले उतना ही करना है। तो ओशन ले लो पहले। इसका आंसर जो है, एक्चुअली इसका आंसर क्या है? दैट इज़ 1, 3
एंड 4 2 है, तो 1 3 एंड 4 2 है, ठीक है। इसका आंसर 1 3 एंड 4 2 है। पहले आ जाएगा ओशन, और फिर आता है पोलर आइस और ग्लेशियर्स में ज़्यादा पानी होगा, एंड देन जो है ग्राउंड वाटर में होगा, और फिर रिवर में होगा। तो देखो जो है ग्राउंड वाटर से ज़्यादा, मतलब रिवर से ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर में होगा, एंड ग्राउंड वाटर से ज़्यादा आइस एंड ग्लेशियर्स में होगा, एंड आइस एंड ग्लेशियर्स से ज़्यादा ओशन में है, पक्का, ठीक है। तो पहले जो है मैंने बताया कि रिवर से ज़्यादा ग्राउंड वाटर में होगा, एंड देन ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पोलर आइस में होगा एंड ग्लेशियर्स में, एंड देन उससे भी ज़्यादा ओशन में होगा, ठीक है, इस तरीके से। या देन नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट वाला ही है, यहाँ पे कोल फील्ड्स एंड कंट्री को बताना है हमको। देखो एप्लाचियन इंग्लैंड में है, लैंकाशायर जर्मनी में है, रूहर रशिया में है, अच्छा, एंड कुछ बस जो है यूएस में है। तो मतलब इस तरह से हमें मिलाना है, बताना है। तो देखो जहाँ तक कि मुझे पता है रूहर जो है जर्मनी में है, जर्मनी में है रूहर, यानी कि जर्मनी, मतलब सी का 2 होना चाहिए, दैट इज सी का 2, 2 ही है इसमें, सी का 2 ए और बी ऑप्शन में। तो देखते हैं देन लैंकाशायर, अच्छा, देन एप्लाचियन माउंटेन, ये तो यूरोप में होना चाहिए, दैट इज़ इन, सॉरी, हाँ, तो इंग्लैंड में एप्लाचियन माउंटेन होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ए का 1 होना चाहिए। नहीं ना, यही गड़बड़ हो गई मेरी, मतलब मुझे एक पता था श्योर, बाकी के थोड़े बिखरे थे। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे एप्लाचियन कोल फील्ड जो है वो है यूएसए में, लग ही रहा था, ठीक है, नहीं क्या आंसर की बात लगता ही है। तो एप्लाचियन जो है यूएसए में है, एंड देन लैंकाशायर जो है वो इंग्लैंड में है, ठीक है। लैंकाशायर कहाँ पे है, वो है इंग्लैंड में, रूहर है जर्मनी में, एंड कुछ बस जो है रशिया में है, ठीक है। सो अच्छा डी का जो है, अच्छा भैया, हाँ, तो कुछ बस जो है वो रशिया में है, लैंकाशायर जो है हमारा इंग्लैंड में है, बी का क्या है 1 है, हाँ, और एप्लाचियन जो है यूएसए में है, कोल फील्ड है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज़ और आर नॉट सिचुएटेड इन यूपी। तो कौन सा यूपी में नहीं है, देखो यहाँ पे यूपी में कौन सा नहीं है वो देखना है हमको। रामसर साइट यूपी में नहीं है, सरसई, समासपुर, रुद्रसागर लेक, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अच्छा, तो यहाँ पर जो है समासपुर तो पक्का है, 2 तो है, तो मैंने देख लिया, तो ऑप्शन बी और डी हट जाता मेरा। अब बचे मेरे 2, दैट इज़ ए और सी। सर सही, जिसमें से सर सही भी लग रहा है, तो ऑप्शन 1 भी चला जाता। सुल्तानपुर जो है यही किसी और में है, ऑब्वियसली लग ही रहा था और है भी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होता, 3 और 4 हो जाता है। इसका आंसर क्या होता है, 3 और 4। वही है कि तुमको बस श्योर शॉट होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा हल्का गैस लेकर के निकालना पड़ता है आंसर। तो सुल्तानपुर नहीं है नेशनल पार्क, और ये रुद्र सागर वाला नहीं है, ओके, या ठीक है। ये आई थिंक रुद्र सागर वाला महाराष्ट्र के रीजन में है आई थिंक, नहीं तो देख लेना कहाँ पर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। पंचायती राज से टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल बी ऑफ 5 years इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द सीट रिजर्व 1/4 सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बिल्कुल गलत, 1/3 होता है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द सिल्वर आर्टिकल्स, कौन सा करेक्ट है, देखो सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर जय भगवान जी। अच्छा ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आर्टिकल्स, देखो यहाँ पे सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड इट हैपन्स ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सल्फाइड के बारे में था, और यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता था। ब्लैक टू एयर एंड दिस इज दैट,
सो ये जो है दोनों सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन राज्यसभा, सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो, सो ओनली वन इज करेक्ट, या ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द, ये देख लिया हमने। देन ओके, पुष्कर कुंभ मेला 2025 में जो हुआ था, ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में हुआ था? तो राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड। राजस्थान में तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड। सैलरी कितना? एक तारीख के पगार मिलती है 10 तारीख। इसका आंसर जो है सी, दैट इज ओनली 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं नहीं करती। ठीक है। With reference to the acid and bases, acid solution have pH more than 7, basic solution have pH less than 7। गेम खेल गया, उल्टा ही कर दिया, तो गलत हो गया। एसिड और बेसिक में मेरा हमेशा थोड़ा कन्फ्यूज़न होते रहता है ये कि किसका मोर है किसका लेस है। तो यहाँ पे एसिड और बेसिक का उल्टा है। तो एसिडिक कोई चीज़ तब होगी जब मोर देन 7, अच्छा सॉरी, लेस देन 7 होगा, ठीक है। जब लेस देन 7 होगा पीएच लेवल तब वो एसिडिक है, और मोर देन 7 होगा तो वो बेसिक, ठीक है। क्षारीय है, ठीक है। या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड और बेस का देख लिया हमने, ठीक है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, दिस रेलवे जोन है हेडक्वार्टर्स का। तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं करती। देन लिस्ट वाले क्वेश्चन है इसमें, एम्परर एंड सिटी वेयर द टॉम्ब इज़ लोकेटेड। सो बाबर आगरा, अच्छा, हुमायूं लाहौर, जहांगीर दिल्ली, शाहजहाँ काबुल। देखते हैं शाहजहाँ का कहाँ पे है, जहांगीर और दिल्ली। सो यहाँ पे शाहजहाँ का कहाँ पे होना चाहिए? इट शुड बी इन दिल्ली। ठीक है, शाहजहाँ का डी का, अच्छा नहीं, ये भी नहीं आ रहा है मुझे, तो ये तो मेरा नहीं होता, गलत हो जाता है ये। तो बेटर था इसको करो ही ना। तो इसका जो आंसर है ए का 4 है, मतलब बाबर का कहाँ पे है? काबुल में है। इनका टॉम काबुल में है। देन हुमायूं का जो है वो है दिल्ली में। हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली में है, ओके। एंड देन जहांगीर का कहाँ पर है? सो वो है लाहौर में, जहांगीर का लाहौर में है। और शाहजहाँ का कहाँ पर है? तो शाहजहाँ का जो है वो आगरा में, ठीक है। तो शाहजहाँ का आगरा में है और बाबर का काबुल में है, ठीक है। हुमायूं का जो है वो दिल्ली में है। देन जहांगीर का लाहौर में है। 4 3 2 1 उल्टा हो गया है, ठीक है ये तो, हाँ जी ठीक है। सो कहाँ पे है? देखो यहाँ पे बाबर का कहाँ पे है? ये काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है। देन जो है जहांगीर का लाहौर में है, ओके। एंड देन शाहजहाँ का आगरा में है। इनका जो टॉम है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट स्पेशल फोर्सेस। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी की चीज़ें हम, मतलब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। टेक केयर एंड बाय बाय।